दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी, मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप इनेबल की है। मेंबरशिप का बटन जॉइंट वो आपको सब्सक्राइबर बटन के नेक्स्ट मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो विद योर मेंबरशिप फ़ी। 3 ऑप्शन है आपके पास, स्पेशल, प्रीमियम एंड सुपर फैंस। आप मेरे जैसे फ़ैन हो वही ऑप्शन सेलेक्ट करके मेंबरशिप हासिल करो। उसका फ़ायदा ये होगा, जो मेरे एम्बिशंस हैं, मेरे प्लान्स हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में कुछ मैंने बड़ी बड़ी मूवीज़ भी बनानी हैं, बड़े बड़े सिटकॉम्स बनाने हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ बैक डोर में। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ अरसे में उसकी खुशखबरी सुनाऊँगा। तो उस काम के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हो, अभी भी बहुत ज़रूरत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मैं ज़ोर नहीं दे रहा। अगर आप समझते हो कि मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो डेफ़िनेटली आप मेंबरशिप एक्वायर करो, और जैसे ही मेंबरशिप एक्वायर करोगे आपको उसके बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Hello guys, how are you? मेरा नाम अफावत। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। इस वीडियो की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, मैं एक बंदे का नाम नहीं ले सकता, तो जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया थैंक यू वेरी मच, शाउट आउट मैं दे रहा हूँ आप सबको। आप सबको मालूम है कि आपने मुझे लिंक भेजा है। द वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनर फ्रॉम इंडिया। Yes, youngest billionaire, not millionaire, billionaire. I'm very excited to watch this video. This could be most motivational, inspirational और एक कहना चाहिए आपके अंदर एक रूप फूकने वाली बात कि हाँ आप भी कर सकते हो कुछ दुनिया में, जब इतना यंग लड़का दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर बन सकता है। तो बिना कोई टाइम जाएगी पहले उनकी स्टोरी सुनते हैं, देखते हैं वो कैसे बिलियनर बने, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Hey, the guy you see next to me is the world's youngest billionaire and he's not even 30. It looks so simple. I'm Ritesh Agarwal. I'm 26 years old. 26. And this guy doesn't come from New York, doesn't come from California, doesn't come from Sweden. He comes from here, Rayagada, India, a city where most people make no more than $10 a day. For the first time ever, I want to share with you the incredible success story of the world's youngest billionaire. Ritesh grew up poor, and for 18 years he struggled. He didn't go to university and he had no career. At that point of time, I felt this was the toughest period I was ever going to endure in my life. At some point, he was kicked out of his apartment with 50 cents in his bank account. So how the hell do you become a billionaire? Money is not what I ever cared about. It is always about solving real problems for me. And so he did. He noticed that a nearby hotel was empty a lot of the time, and the owner wasn't making much money. So he went to the owner and took the biggest risk of his life. He promised to make his hotel better. He changed the light bulbs. He changed the beds. He added water. He put picture frames. He put room service. And he took nice pictures of the hotel and put them on the internet and changed the name and called it Oyo Hotel. All of a sudden, the hotel went from empty to full, and it worked. First hotel is always the hardest. When I was able to change one hotel, I was pretty sure I could change hundreds. At age 20, he raised money from investors. At age 21, he hired 50 people. At age 22, he had 500 hotels. At age 24, he raised $1 billion. And at age 26, right now, he has 46,000 hotels and built the second largest hotel chain in the world. And he's not even 30 years old. Many people told me multiple times, go to university, seek help from parents to make sure that you can do that. This is just not going to work. Seriously. That's crazy. Think about this for a second.
A random kid in a poor Must city be in chosen India one. with 50 cents in his bank account became the world's youngest billionaire in 5 years and helped 350,000 people get jobs. This isn't just luck, this is the definition of hard work. He worked at night, he worked on weekends, he knocked on doors, he guessed people's emails, he begged to get meetings, and he succeeded even when all the odds were stacked against people that looked like him. But I do believe in luck. I believe if you work hard, your probability of being lucky increases dramatically. When you don't let your nationality, ethnicity, age, university background, family status, or gender come in the way, you will achieve greatness. वाओ, वेरी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। इससे कुछ सीख मिलती है आपको? मुझे तो मिली। उसमें ये मिली कि मेरा हमेशा से यकीन रहा है लक पे। यू हैव टू बी लकी। आप में हुनर है, टैलेंट है, आप कुछ दुनिया में कर सकते हो, आपके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही ना, तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो उसके बाद। लेकिन ये बंदा लकी रहा, उसको एक मौका मिला होटल को रेनोवेट करने का, और फिर उसके बाद देखते ही देखते वो 46,000 होटल्स की चेन का मालिक हो गया। 3,60,000 लोगों को जॉब्स दी है। वाह, 26 साल की उम्र में कोई इमेजिन कर सकता है? बोल रहा है भाई मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, इट्स नॉट फॉर मी एट ऑल। एम्बिशन था, एक ड्रीम था। मुझे आप लोग ये बताइए कि हर कहानी 50 रुपये से 50 सेंट या 50 पेंस से शुरू क्यों होती है? बहुत सारी हम लोगों ने फिल्में देखी है ना बॉलीवुड की। मैं जब मुंबई आया था तो मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये थे, 5 रुपये थे, 50 पैसे थे। इसी तरह की बात है। ये 5 का क्या आंकड़ा है भाई, कोई मुझे बताए। लेकिन ये कि लकी साबित हुआ उसके लिए वो 50 रुपये का नोट, और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वेरी डाउन टू अर्थ। लग ही नहीं रहा कि ये बिलियनर है। आप उसके बात करने का अंदाज़ देखो, ऐसा लग रहा है कि बस ये नॉर्मल है ना, जो एक गांव देहात के लड़के होते हैं, बिल्कुल सादा। वरना कुछ लोगों के पास आजकल 1 मिलियन क्या लाख रुपया भी आ जाए तो उनके कॉलर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आसमान के ऊपर होती है उनकी आँखें, को नीचे वाले बंदे नज़र ही नहीं आते। तो बस ये बात है, ऊपर वाला जब किसी को देता है तो देखभाल के देता है। चोज़न वन, और वेरी प्राउड मैन। मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों की संगत बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए अगर इसके पास टाइम हो। आई वुड लव टू टॉक टू हिम एक्चुअली। अगर मैं इंडिया कभी आया ना, आई होप नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं इससे ज़रूर मिलूँगा। मुझे बहुत इंस्पायर किया इस बंदे ने 26 साल की उम्र में यार, इतनी अचीवमेंट हासिल करना। वाह, ग्रेट ग्रेट। इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ हिम। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना यार। आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ हिम एज़ वेल। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बहुत यंग है और बहुत मुझे डाउन टू अर्थ लगा ना। बहुत बेचारा मासूम सा और शरीफ सा। कितनी मुश्किलें देखी होंगी इसने 5 साल में। 5 साल का अरसा कम नहीं होता, 5 साल का अरसा बहुत होता है। हमें तो ऐसे लग रहा है ना कि एक होटल से 46,000 होटल तक पहुंच गया, लेकिन वो जो जर्नी है कितनी डिफ़िकल्ट होगी ये देखने की बात है। इसके ऊपर डिटेल एक बायोग्राफी बननी चाहिए कि किस मुश्किलात से वो गुजरा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप अपनी एक स्पीच पिच करने जाते हो किसी भी बिज़नेस के तरफ पैसे लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत से तो बिजनेसमैन हैं वो आपको पूछते ही नहीं हो, टाइम ही नहीं देते, आपके जो जूतों के सोल रगड़वा देते हैं वो लोग। तो किस तरीके से ये अप्रोच किया इसने और किस तरह से उसने कायल किया लोगों को, ये देखने की बात है। अगर इस तरह का कोई वीडियो आपके पास हो इस बंदे के हवाले से तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आई वुड लव टू वॉच इट, आई वुड लव टू रिएक्ट इट। और इस तरह के और भी कोई वीडियोज़ हैं वो मुझे ज़रूर भेजिए। मुझे इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देखने का बहुत शौक़ है, सिर्फ बातों का नहीं, इस तरह के प्रैक्टिकल इंस्पिरेशनल वीडियोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।